Assalamu alaikum students. I hope you are fine and in good spirits. Today we will start a new lesson from your book and the name of the lesson is The Last Lesson. It is written by Alphonse Daudet and it is about an historical event in the history of France. We will first discuss the theme of the lesson, then we will discuss its main points, and in the end, we will discuss its important questions. So, let's start our lesson. The last lesson is a gently ironic story and at the same time patriotic tale of a schoolboy who learns too late the value of his native language. Ironic मीन्स जब आप कोई एक चीज़ किसी एक सेंस में बता रहे होते हैं लेकिन उसका एक्चुअल मीनिंग उसके टोटली ऑपोजिट होता है पेट्रियाटिक यानी हुब्बुल वतनी सो ये जो लास्ट लेसन है ये एक ऐसी स्टोरी है जो पेट्रियाटिक भी है और आयरॉनिक भी है और हमें बताती है एक ऐसे स्कूल बॉय के बारे में जिसको बहुत देर से पता चला कि उसकी अपनी जो लैंग्वेज है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है It brings to light the nationalistic feelings of the French people as portrayed through two persons an old schoolmaster, Monsieur Hamel, and his young student, Franz, which is the writer himself. So, ये जो लेसन है ये हमें बताता है कि फ्रांस के लोगों की जो नेशनलिस्टिक और पेट्रियाटिक फीलिंग्स थी वो क्या थी और इन दोनों फीलिंग्स को उसने किन दो कैरेक्टर्स के थ्रू एक्सप्रेस किया है एक ओल्ड स्कूल टीचर के थ्रू जिसका नाम मोसियो हैमल है और एक उसका जो यंग स्टूडेंट है उसके थ्रू जिसका नाम फ्रांस है तो द स्टोरी किसके बारे में है फ्रांस के बारे में कि वहाँ के लोग अपनी लैंग्वेज और अपने कंट्री के बारे में क्या फील करते थे So the story highlights the importance of general education and national language for the independence of a nation. So स्टोरी हमें क्या बताती है कि किसी भी नेशन की जो इंडिपेंडेंस है वो उसकी एजुकेशन और उसकी नेशनल लैंग्वेज के ऊपर डिपेंडेंट होती है और अगर किसी नेशन की इंडिपेंडेंस ख़त्म करनी हो तो उसकी एजुकेशन और नेशनल लैंग्वेज अगर कंट्रोल में ले ली जाए तो उस नेशन की इंडिपेंडेंस ख़त्म हो जाती है The more a language spreads, the more the culture of its speakers spreads. So जितनी भी कोई लैंग्वेज ज़्यादा इलाकों में जाती है उतना ही उसके बोलने वालों का कल्चर भी दूर दूर तक फैलता है Moreover, the historical background of the story also deals with the Franco-Prussian War and its adverse effects on the freedom of France. Adverse means बुरे. Franco-Prussian, Franco means France, Prussian यानी प्रूशिया प्रूशिया जो कंट्री था उस वक्त जर्मनी का नाम प्रूशिया था और प्रूशिया ने फ्रांस के ऊपर अटैक किया और उसके कुछ इलाकों के ऊपर कब्जा कर लिया तो ये स्टोरी उन इलाकों के लोगों के बारे में है जिन पर प्रूशिया ने यानी जर्मनी ने कब्जा कर लिया था सो लेट्स सी कि ये स्टोरी हमें नेशनल लैंग्वेज और एजुकेशन के बारे में क्या बताती है The story deals with the aftermath of the Franco-Prussian War, which left adverse effects on the people of France. Aftermath यानी जब किसी बड़े वाक़ये या हादसे के बाद जो कुछ होता है उसे aftermath कहते हैं. It so happened that the Prussians, after occupying the French region of Alsace and Lorraine in 1871, ordered the replacement of French by German language. तो क्या हुआ कि 1871 में प्रूशियंस ने फ्रांस के दो रीजन्स अल्सास और लोरेन पर कब्जा कर लिया और कब्जा करने के बाद उन्होंने ये ऑर्डर दिया कि फ्रेंच लैंग्वेज की बजाय अब स्कूल्स में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी और सारी टीचिंग जर्मन लैंग्वेज में होगी और फ्रेंच लैंग्वेज को एजुकेशन में से मुकम्मल तौर पर यानी कम्प्लीटली फिनिश कर दिया जाएगा Mr. Hamel, who had been faithfully teaching French for 40 years, was going to deliver his last lesson of French grammar that day. So Mr. Hamel, जो French के teacher थे, and he was teaching French for 40 years, that was the last day that he would deliver a lecture in French language. वो जो lecture था वो किसके बारे में था? French grammar के बारे में. The story is about Franz, the writer himself, who was a young student at a French school. He always thought of escaping from school and roving through the fields. Roving means घूमना फिरना आवारागर्दी करना. So what did he want? He wanted not to go to school and play in the fields.
Thus, on that day, when it was going to be the last lesson of French, he reached the school late as usual. So क्या होता था कि वो usually late हो जाता था और उस दिन भी वो late पहुंचा because उसे नहीं पता था कि वो उसका last day है. He was astonished to see the pin drop silence and the villagers and the elite of the town sitting along the students in the classroom. Classroom में enter हुआ, astonish means हैरान हो गया, surprised. बहुत ज़्यादा हैरान हुआ, सरप्राइज्ड हुआ कि क्लास में मुकम्मल यानी कंप्लीट साइलेंस थी और विलेजर्स भी क्लासरूम में मौजूद थे और इलीट मींस जो बड़े लोग होते हैं किसी भी टाउन के. सो वो सारे इलीट लोग और विलेजर्स वो सब उस क्लासरूम में स्टूडेंट्स के साथ मौजूद थे. वो ये सब देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हुआ. He was completely surprised. His French teacher, Mr. Hamel, was dressed in fine clothes, which was unusual on his part. So, Mr. Hamel usually बहुत ज़्यादा नए और अच्छे कपड़े पहनकर नहीं आते थे क्लास में, इसलिए ये भी उसके लिए एक यूनिक और न्यू थिंग थी. Everybody in the classroom looked very sad. All these things created a sense of curiosity in his mind. Curiosity means the jasus. So, जो राइटर है उसने जब ये सब चीज़ें देखी तो उसके माइंड में एक क्यूरोसिटी डेवलप हुई कि आखिर हुआ क्या है. तो स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है कि फ्रांस जो कि एक छोटा बच्चा है, स्कूल स्टूडेंट है, वो कभी भी स्कूल जाने पे हैप्पी नहीं होता और रास्ते में इधर उधर घूमता रहता है एंड ही इज़ ऑलवेज लेट फॉर हिज क्लास. जब वो क्लास में पहुंचता है उस दिन यानी उसके लास्ट लेसन वाले दिन, तो ही व्हाट ही सीज इन द क्लासरूम इज के ना सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि उनके पेरेंट्स और टाउन के जो दूसरे बड़े लोग थे वो सब के सब उस क्लासरूम में मौजूद थे. एवरीबॉडी वाज सैड. सो जो टीचर थे वो उन्होंने अपना सबसे अच्छा ड्रेस पहन रखा था जो कि ऑब्वियसली अनयूजुअल था क्योंकि अपना सबसे अच्छा ड्रेस क्लास में नहीं पहनते थे. एंड एवरीबॉडी वाज कम्प्लीटली साइलेंट. तो इन सब चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ एंड ही वॉज थिंकिंग कि व्हाट इज़ रॉन्ग and or what is the special thing that is going to happen in his classroom. That is all for today. We will discuss the rest of the lesson in the next class. If you have not, I hope you have understood the lesson. If there is any part that you don't understand, don't hesitate to ask. That's all for today. Have a nice day. Allah Hafiz.